Okay. So voice is audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am. So first of all, our topic is excretion. Okay. So you must know कि excretion क्या होती है. Just try to understand. Okay. The biological process of removal of harmful toxic substances or waste product from the body. Okay. So the biological process of removal of wastes from the body, removal of toxic wastes from the body, or removal of nitrogenous wastes from the body is called as the excretion. Okay. उस प्रोसेस को आप बोलते हैं, मतलब बॉडी से वेस्ट को रिमूव करना, बॉडी से नाइट्रोजनियस वेस्टेस को रिमूव करना फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज द एक्सक्रीशन. Okay, all of you just please mute yourself, and if you're having any question, and the last I will give you time to ask questions. So during the class all of you please mute yourself. Okay, so now picture is visible. Yes, ma'am. Anyone? Yes, Okay. ma'am. Now, उसने क्या है, in humans the nitrogenous waste product that is urea is excreted through a well established system called urinary system or excretory system. ठीक है, हमारी बॉडी में बड़े सारे वेस्ट होते हैं, बट जो important waste है that is the urea. उसने क्या है, that is excreted, that is removed through a well established system. That system is called as the urinary system or excretory system. Now first of all we will study the human excretory system. Excretion को पढ़ने के लिए you must know कि what is the human excretory system, और human excretory system की फिर हम functioning पढ़ेंगे. Okay, so first of all we have to study the human excretory Why system. is the rain blessing to the sick man? So human excretory system is consist of a pair of kidneys. You can see in the picture it consists of a pair of kidneys. Pair of ureter means, pair of kidney means two kidneys, two ureter, a urinary bladder, एक urinary bladder है, and urethra. So four parts are there. Just try to understand. Four parts are there. Two kidneys, two ureter, one urinary bladder, and urethra. Okay. Waste is filtered from the blood and is collected in the form of urine in each kidney. ब्लड जो वेस्ट जो है वो ब्लड से फिल्टर्ड होता है. हमारी बॉडी में जो ब्लड है, जो फिल्टर, जो डर्टी ब्लड है वो किडनी में जाएगा. वहां से जो वेस्ट है इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इन ईच किडनी. दोनों किडनी में वेस्ट कलेक्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. नाउ यूरिन सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट होगा, किडनी में. ओके, यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू द यूरेटर्स. थ्रू द यूरेटर, किडनी से यूरिन कहाँ जाएगा, यूरेटर्स में, एंड इज टेम्परेरली स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर. मीन किडनी से वेस्ट कहाँ गया, यूरेटर्स में. फ्रॉम द यूरेटर द waste, the urine is stored in the urinary bladder, and from here urine leaves the body through the urethra. So first of all waste कहाँ जो बनेगा, किडनी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. किडनी से यूरेटर्स में आएगा, यूरेटर्स में यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा, एंड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इट मूव्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा. ओके, now you can see in the picture. Okay, picture is visible. Any one of you can unmute. Yes, ma'am. Okay, now see in the picture, this is the human excretory system. Okay, human excretory system I have told you it consists of two kidneys. You can see ये दो kidneys हैं, pair of kidney या फिर two kidneys, two ureters. You can see two ureters हैं, one urinary bladder, and last is the urethra जहाँ से जो remove होता है आपका urine. Okay, now you have to see कि two veins are there, the two blood vessels are there, renal vein, okay, and renal artery. Renal vein and the renal artery. रीनल आर्टरी क्या करती है, किडनीज में डर्टी ब्लड लाएगी. ओके, रीनल आर्टरी से जो डर्टी ब्लड है वो किडनी में आएगा, वहां से वो किडनी में क्या होगा, फिल्टर होगा, एंड देन द प्योर ब्लड फ्रॉम द रीनल वेन एंटर्स इनटू द बॉडी. वो फिर से वापस जो है एंटर करेगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बॉडी से जो वेस्ट है, जो इम्प्योर ब्लड है, impure blood enters into both the kidneys through the renal artery. So you can say that renal artery brings the dirty blood into both the kidneys, and renal vein carry that pure blood to the body, to the blood circulatory system again. ठीक है, रीनल आर्टरी से दोनों किडनीज में इम्प्योर ब्लड आएगा, किडनी में उसकी प्योरिफिकेशन होगी, फिल्टर किडनी में रह जाएगा, यूरिन बन जाएगा, और जो प्योर ब्लड होगा, दिस प्योर ब्लड देन अगेन मूव इनटू द रीनल वेन, और रीनल वेन से वो वापस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएगा इन द प्योर फॉर्म.
Okay, so this is the human excretory system, 2 kidneys, 2 ureter. Okay, so just try to understand, रीनल आर्टरी से ब्लड कहाँ आएगा, किडनी में, किडनी में उसकी फिल्ट्रेशन, प्योर इम्प्योर ब्लड, ओके, वहां उसकी फिल्ट्रेशन होगी, फिल्ट्रेशन क्या होगी, जो वेस्ट होगा वो यूरिन बन जाएगा, जो प्योर होगा वो कहाँ चल जाएगा, रीनल वेन के थ्रू बॉडी में, और जो यूरिन होगा वो कहाँ मूव करेगा, नीचे यूरेटर्स में, यूरिनरी ब्लैडर में, एंड देन मूव आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा. ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो द सिस्टम. अब इसमें आप एक दो स्ट्रक्चर और एक्स्ट्रा है. दिस इज द हाइलम, यू कैन सी इन द हाइलम. हाइलम क्या है, ये आपका नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किडनी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, और यहाँ से जो ब्लड वेसल्स एंटर और लीव द किडनी, यू नो ना कि रीनल आर्टरी एंटर करती है, रीनल वेन लीव करती है, तो वो जो रीनल आर्टरी और रीनल वेन होंगी वो एंटर एंड लीव द किडनी थ्रू द हाइलम. हाइलम एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ से रीनल आर्टरी एंटर करेगी, डर्टी ब्लड लाएगी, और रीनल वेन जो है वो वापस जाएगी. Okay, so this is the right kidney, this one is the left kidney, and hilum is present in both the kidneys. Then again ureter, you can see कि दोनों जो ureter है उनकी opening कहाँ पे है, urinary bladder के अंदर. Okay, so this is the opening of urinary ureter into the urinary bladder, and then urethra. urethra से जो urine है body के through, body से बाहर जाता है. Okay, now this is the kidney. Okay, kidneys are very very important. Picture is visible. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so kidneys are reddish brown bean shaped paired organs. Just remember kidney की shape क्या, हमेशा एग्जाम में पूछते हैं कई बार ऑब्जेक्टिव में कि what is the shape of the kidney. Kidneys are the bean shaped paired organs and are about the, this is the size 10 centimeter long and 6 centimeter wide. Okay, this you have to remember. They lie along the posterior abdominal wall on either side of the backbone. Okay, abdominal cavity, already we have discussed कि abdominal cavity क्या होती है, the cavity in which kidneys are present, in which liver is present, sorry, in which kidneys are present, वो आपका होता है abdominal cavity. And the cavity in which lungs are present, जहाँ आपके lungs present होते हैं वो आपकी thoracic cavity है, और जो आपके नीचे small intestine, large intestine, kidneys जहाँ present वो आपका abdominal cavity है. Okay, so दो partition है body में. डायफ्राम, यू नो ना कि डायफ्राम के ऊपर वाले को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और नीचे क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल कैविटी. सो रिमेंबर किडनी इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी एंड लंग्स आर प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी. देन किडनीज आर प्रोटेक्टेड बाय लास्ट टू पेयर ऑफ रिब्स. आपको पता है हमारी बॉडी में पेयर ऑफ रिब्स हैं, बड़े सारे रिब्स हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, और जो लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं किडनी को. The right kidney, this is very very important. The right kidney is located as a slightly lower level than the left one. राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी लेफ्ट किडनी से, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ये देखो राइट किडनी जो है आपकी थोड़ी सी लेफ्ट किडनी ऊपर है, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होगी. उसने कहा राइट किडनी इज लोकेटेड at the slightly lower level than the left one, as the right side of the abdominal cavity is occupied by the liver. क्योंकि राइट साइड में लीवर भी प्रेजेंट है, इसलिए जो राइट किडनी वो थोड़ी सी नीचे की तरफ आ जाती है और लेफ्ट वाली थोड़ी सी ऊपर होती है. क्योंकि राइट किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, उसने लीवर को भी ऑक्यूपाई करना होता है, इसलिए राइट किडनी है slightly lower to as compared to the left kidney. And the in median surface a notch called hilum. Already you have seen कि hilum क्या है. Hilum act as a route of entry and exit for the blood vessel. Blood vessel जो enter करेगी और जो exit करेगी वो कहाँ से enter करेगी, hilum से. Hilum is like a door. Okay. And then this is important, the renal artery brings oxygenated blood containing wastes to the kidney. This line is important कि renal artery जो है वो oxygenated blood लाती है kidneys में, but that blood contain waste. Okay, वो blood oxygenated है, उसमें oxygenated blood है, but उसके अंदर क्या है, waste है. एंड द रीनल वेन टेक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. रीनल वेन क्या करेगा, किडनी से उसको ऑक्सीजन दे देगा, तो वो ब्लड क्या बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, और साथ में वेस्ट भी दे देगा, तो देन इट बिकम फिल्टर्ड ब्लड फ्रॉम द किडनी टुवर्ड्स द हार्ट. सो रीड दिस लाइन अगेन, द रीनल आर्टरी ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेनिंग वेस्ट टू द किडनी. किडनी में रीनल आर्टरी ब्लड लाएगी, उस ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और साथ में वेस्ट भी प्रेजेंट है. ओके, सो रीनल वेन क्या करेगी, रीनल वेन क्या लेके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब वो जो ब्लड जब किडनी के अंदर एंटर कर जाएगा वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और फिल्टर भी वेस्ट भी दे देगा उसको. ठीक है, सो द रीनल वेन टेक्स डीऑक्सीजनेटेड and filtered blood from the kidney towards the heart. Okay, so renal artery लाती है dirty blood but वो oxygenated है. renal vein लेके जाएगी pure blood but वो deoxygenated है. Okay, now this already I have seen that ureters are a pair of long narrow
I think now you are familiar with the ureter की pair of long narrow thin wall tubular structure है that starts from the hilum of the kidney, जो hilum से start होते हैं, run downward, और open कहाँ होती है, मतलब starting कहाँ पे है ureter की, हाइलम से, किडनी के हाइलम से, और उसकी ओपनिंग कहाँ पे है, दूसरी साइड कौन से, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होंगे. दे कंडक्ट द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. ये जो यूरेटर्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये किडनी से यूरिन लेंगे और उसको कहाँ लेके आएंगे, यूरिनरी ब्लैडर में. यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन है, इट ओनली स्टोर्स द यूरिन. ये थोड़ी देर के लिए यूरिन को क्या करता है, स्टोर करता है. देन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो है ओपनिंग है, इट इज अ मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड. ओके, it carries the urine to the outside. So this is all about the human excretory system. Okay, so this is again the diagram. So this is a human excretory system that consists of two kidneys, two ureter, one urinary bladder and the urethra. So again I am repeating कि renal artery जो है वो dirty blood लाती है, उस dirty blood की दोनों kidneys में dirty blood की filtration होती है, जो प्योर इम्प्योर चीजें होती हैं वो यही रह जाती है जिसको आप यूरिन बोलते हो. वो यूरिन कहाँ मूव करेगा, यूरेटर में, देन यूरिनरी ब्लैडर में एंड यूरेथ्रा के थ्रू बाहर से बॉडी के बाहर चल जाएगा. एंड द प्योर ब्लड किडनी से कहाँ जाएगा, रिनल वेन के अंदर, और रिनल वेन के अंदर वो वापस कहाँ चल जाएगा, बॉडी के अंदर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में. दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम. नाउ यू ऑल नो कि जो ह्यूमन बॉडी है, यू नो कि ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट क्या है, सेल. यू ऑल नो कि बॉडी का व्हाट इज स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी इज सेल. इन द सेम वे द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज द नेफ्रॉन. ठीक है, जो किडनी की स्ट्रक्चर कौन बना रहा है और किडनी के अंदर जो फंक्शनिंग हो रही है, जो यूरिन फॉर्मेशन हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, नेफ्रॉन की, बिकॉज नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ओके, सो नाउ वी हैव, अब हमने ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम को थॉरोली पढ़ने के लिए वी हैव टू स्टडी द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी. ओके, कि किडनी का बेसिक यूनिट क्या है. लाइक आप बॉडी की फंक्शनिंग पढ़ते हो तो यू मस्ट नो कि सेल क्या है, क्योंकि सारे बॉडी के फंक्शन कहाँ होते हैं, सेल के अंदर होते हैं. इन द सेम वे व्हेन वी आर स्टडीइंग द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, सो यू मस्ट नो कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज द नेफ्रॉन. ओके, so each kidney is composed of million of nephrons. Voice is audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So each kidney is made up of million of nephrons. हर एक, दोनों किडनी जो है इनके अंदर million of nephrons होते हैं. जैसे हमारी बॉडी में million of cells होते हैं, नेफ्रॉन क्या है, सेल. ओके, नेफ्रॉन किडनी का बेसिक यूनिट है, किडनी का बेसिक सेल है. So उसने क्या, each kidney is composed of million of nephrons, that is also called as the uriniferous tubule और kidney tubule भी बोलते हैं उसको. Okay, so each kidney is made up of million of nephrons. The nephron is the structural and functional unit of kidney. किडनी का स्ट्रक्चर किससे बनता है, नेफ्रॉन से. किडनी की जो फंक्शनिंग होती है, मतलब जो अंदर यूरिन फॉर्मेशन हो रही है, that is an important question, how urine formation takes place in our body. Okay, so that all takes place due to the nephron. वो सारा फंक्शन जो है, सारा काम किसके अंदर होता है, नेफ्रॉन के अंदर. सो फॉर दैट फर्स्टली वी हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. ओके, नाउ सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के अंदर 3 पार्ट हैं, मालपिंगियल कैप्सूल, मालफिगियन कैप्सूल फर्स्ट पार्ट, then nephric tubule second part, and third one is the collecting tubule. Okay, look into the picture carefully and try to understand. nephron के 3 part हैं. First one is the malphigial capsule, second one is the nephric tubule, and third one is the collecting tubule. मालफिंजियल कैप्सूल के अंदर 2 पार्ट हैं, द वुमेन कैप्सूल एंड द ग्लोमेरुलस. ओके, इसको देखो, देन आई विल शो यू इन द डायग्राम ऑल्सो. मालफिंजियल कैप्सूल के अंदर जो है 2 पार्ट हैं, द वुमेन्स कैप्सूल एंड द ग्लोमेरुलस. देन नेफ्रिक ट्यूब्यूल में 3 पार्ट्स हैं, द पीसीटी, द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल मीन फर्स्ट पार्ट, देन लूप ऑफ हेनले, and then the DCT, that is also called as a distal convoluted tubule, and third part is the collecting tubule. Okay, इसको read करो, just look into this and then I will show you it in the diagram also. Okay, so this is the anatomy of the nephron, or the structure of anatomy means the internal structure. Okay, so you can see this is the structure of nephron. You have seen कि नेफ्रॉन के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट्स. You have seen ना, ये 3 पार्ट्स हैं. ओके, सो अब आपने ये तीनों जो सारे पार्ट्स हैं, you have to see that parts in the diagram also, only then you are able to understand. So this is the cup shape structure. Okay, this cup shape, I hope this cup shape structure is visible to you. This cup shape structure is called as the
वोमेन्स कैप्सूल, इसको बोलते हैं वोमेन्स कैप्सूल. देन ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या है? बंच ऑफ कैपिलरीज, और यू कैन से द बंडल ऑफ कैपिलरीज. यू ऑल नो कि कैपिलरीज क्या होती हैं. सो ये जो आपको अंदर दिख रहा है, दिस इज द ग्लोमेरुलस. ओके, ग्लोमेरुलस क्या है? बंडल ऑफ कैपिलरीज और बंच ऑफ कैपिलरीज. देन उसके बाहर क्या है? वोमेन्स कैप्सूल. दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, दैट इज अ मालपिगियन कॉर्पसल और मालपिंजियल टब्यूल. ओके, सो यू कैन सी इन द डायग्राम, ये आपका वोमेन्स कैप्सूल है, ये कैपिलरीज हैं, ग्लोमेरुलस. दोनों क्या बनाते हैं? मालपिंजियल कॉर्पसल. एंड डोंट गेट कंफ्यूज, आई हैव टोल्ड यू कि रीनल आर्टरी एंटर करती है, रीनल वेन लीव करेगी. तो रीनल आर्टरी देखो, लाइक यू सी, सपोज दिस रीनल आर्टरी. तो रीनल आर्टरी जो है वो डिवाइड होती है नंबर ऑफ कैपिलरीज में, जिसको आप ग्लोमेरुलस बोलते हो. ओके, देन ग्लोमेरुलस फिर से ज्वाइन होकर रीनल वेन बनाएगा जो बॉडी में प्योर ब्लड लाएगा. ओके, सो जस्ट लुक इनटू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस इज द बंच ऑफ कैपिलरीज और बंडल ऑफ कैपिलरीज. देन वोमेन्स कैप्सूल, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर जिसमें कैपिलरीज प्रेजेंट है उसको आप बोलते हो वोमेन कैप्सूल. एंड बोथ कोलेक्टिवली फॉर्म्स द मालपिगियन कार्पसल. ओके, then this is the first part. Now you have seen this first part, the women's capsule and the glomerulus. Now we will look into the second part, that is the nephric tubule, that consists of PCT, loop of Henle and the DCT. Okay, okay. Now ये जो है यहाँ से just look into this arrow, look into the cursor. यहाँ से start होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा क्या आएगा? tubule, the nephric tubule. Nephric tubule consists of three parts. First one is the proximal. Proximal mean tubule का first part. Proximal the upper portion. This is the proximal convoluted tubule. Then ये जो U shape structure है, okay, this U shape structure यहाँ से लेके this U shape structure is called as a Henle's loop or loop of Henle. And third जो आपका portion है छोटा, ये this is the distal convoluted tubule. Okay, so this is second part of the nephron, that is the tubule, nephric tubule. Nephric tubule के अंदर कितने पार्ट हैं? ये जो आपको दिख रहा है, this is the proximal convoluted tubule, tubule का first portion. Then this U shape, ये जो पूरा U shape है, this is the loop of Henle. And then this one is the distal convoluted tubule. और last में आप क्या देंगे? collecting tubule, collecting tubule. Okay, so this is the structure of the nephron. ओके, सो फर्स्ट पार्ट अब आपने देख लिया कि वोमेन कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट है? कप शेप स्ट्रक्चर है. ग्लोमेरुलस इज द बंडल ऑफ कैपिलरीज जो वोमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है. जस्ट लुक इनटू द स्ट्रक्चर केयरफुली, ओनली देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग. ओके, देन नेफ्रिक ट्यूब्यूल में पीसीटी है, यू हैव सीन, जो फर्स्ट पोर्शन है लूप ऑफ हैनले, द यू शेप स्ट्रक्चर, एंड द डीसीटी इज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड, जो लास्ट पार्ट है नेफ्रिक ट्यूब्यूल का. एंड देन लास्ट इज द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जो छोटा सा पोर्शन होता है. Yes everyone, are you all listening? Yes, ma'am. Okay, okay. Structure समझ आएगा, only then you are able to understand the functioning of the nephron. Okay, okay. So this is again the structure of nephron, लेकिन इसमें इसकी functioning बताई हुई है. Okay, कि nephron function कैसे करता है, how the nephron works. Okay, the functioning of the nephron or the formation of urine. And just remember this thing, the functioning of nephron is also called as the formation of urine. Urine formation और functioning of nephron is the same question. So exam में आपको कैसे भी आ सकता है. So look into the picture carefully. यहाँ देखो, ये आपका वुमेन कैप्सूल है, यहाँ थोड़ा सा अलग करके बनाया so that you can understand. This is the woman capsule and this is the glomerulus. Renal artery जो है, suppose this is a renal artery. Renal artery contain dirty blood. Renal artery dirty blood लाएगी, जिसके अंदर क्या होगा? waste होगा. Just try to understand. Okay, renal artery से जो dirty blood होगा वो आएगा यहाँ पे. देन रीनल आर्टरी से वो कहाँ जाएगा? दिस इज ग्लोमेरुलस. ओके, ग्लोमेरुलस क्या होती है? बंडल ऑफ कैपिलरीज, मतलब कि सपोज 50, इसमें कुछ अराउंड 50 कैपिलरीज होती है ग्लोमेरुलस के अंदर. रीनल आर्टरी से जो रीनल आर्टरी आगे डिवाइड होगी ग्लोमेरुलस में, मतलब 50 कैपिलरीज में. वहां से जो डर्टी ब्लड है वो कहाँ जाएगा? ग्लोमेरुलस में आ जाएगा. यहाँ पे इसकी क्या होगी? फिल्ट्रेशन. ओके, यू कैन सी ये एरो बने हुए हैं यहाँ पे. जब फिल्टर्ड होगा तो जो सारा फिल्टर है सिर्फ ऊपर ब्लड रह जाएगा, बाकी जो भी चीजें हैं ब्लड के अंदर हार्मफुल एंड यूजफुल, बोथ द थिंग्स कम्स इन द वोमेन कैप्सूल, और वोमेन कैप्सूल से वो कहाँ आ जाएंगी? ट्यूब्यूल के अंदर. ओके, वो ट्यूब्यूल के अंदर आ जाएंगे. एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो आपकी ऊपर दिख रही है ना आपको, ये जो बनी हुई है, दिस इज द कैपिलरीज. ओके, दीज आर द कैपिलरीज, ये कैपिलरीज हैं. ट्यूब्यूल है,
जो आपका नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन को पूरा, नेफ्रॉन इज सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरी, सो यू कैन सी ये जो ऊपर बना है ना, ये जो जा रहा है, दिस इज द, ये आपकी कैपिलरीज है जो नेफ्रॉन के ऊपर है, ठीक है। द होल नेफ्रॉन इज सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज। नाउ सो रीनल आर्टरी से जो ब्लड है दैट एंटर्स इनटू द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस उसकी क्या होगी, फिल्ट्रेशन होगी, फ्रॉम द, जब उसकी फिल्ट्रेशन होगी तो ऊपर से ब्लड रह जाएगा। both the harmful and useful things comes into the women's capsule, फिर women's capsule से वो कहाँ आ जाएगा, नीचे ट्यूब्यूल में, ओके। सो यू कैन सी इट इज रिटन हियर फिल्ट्रेट, जो नीचे आएगा उसको आप फिल्ट्रेट बोलोगे। फिल्ट्रेट कंटेन ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर एंड यूरिया, ओके। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड हमारे यूजफुल थिंग्स है और यूरिया हमारा हार्मफुल है, ओके। सो बोथ द यूजफुल, ओनली ब्लड रिमेन्स हियर, जो भी यूजफुल एंड हार्मफुल थिंग्स हैं दे विल कम इन द ट्यूब्यूल, ओके। नाउ ट्यूब्यूल में आएंगी, अब ट्यूब्यूल में उसका क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि द डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट लाइक यूरिया एंटर्स द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में एंटर करेगा। द ग्लोमेरुलस फिल्टर्स द ब्लड, ग्लोमेरुलस फिल्टर करेगा ब्लड को। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द सबस्टांसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, यूरिया present in the blood pass into the woman's capsule and then enter into the tubule of nephron, okay. When the filtrate containing useful substances as well as the harmful substances passes through the tubule, जब filtrate नीचे आएगा जिसके अंदर useful substances भी हैं, harmful substances भी हैं, then the useful substances यहाँ पे क्या होंगे, the useful substances जो भी ग्लूकोज, अमाइनो, वो वहां से क्या हो जाएंगे, useful substances आर रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज हैं तो फिल्ट्रेट के अंदर यूजफुल थिंग्स भी हैं, हार्मफुल तो नीचे जाती जाएंगी, बट जो यूजफुल है वो यहाँ से निकल निकल कैपिलरीज के अंदर आती जाएंगी। यू कैन सी ना ये ब्लड कैपिलरी, तो यूजफुल थिंग्स यहाँ से निकल के कहाँ आ जाएंगी, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, थ्रू द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द ट्यूब्यूल। जो ब्लड कैपिलरीज, ट्यूब्यूल इज सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज, ओके। सो जो ट्यूब्यूल के अंदर यूजफुल थिंग्स हैं दे आर रीअब्सॉर्ब बाय द blood capillaries. Only the waste substances that contain urea और जो some unwanted substances है that pass into the tubule, वो यहाँ से excess remain behind in the tubule, वो tubule में रह जाएंगे, okay. The liquid left behind in the tubule of the nephron is urine. अब जो भी यूजफुल चीजें होंगी वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर आती जाएंगी और जो पीछे रह जाएगा वो आपका किस ट्यूब्यूल के अंदर, ओके। सो useful things comes into the blood capillaries and harmful things remain in the tubule only. U shape structure आपका tubule है और जो tubule है that forms the, tubule के अंदर जो आपका waste होगा that forms the urine. You can see some water, some salt and all urea form urine. तो यहाँ से आपका urine जो है वो कहाँ जाएगा, इसके अंदर, urine collecting duct के अंदर आएगा। From the collecting duct then it enters to, देखो नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन द किडनी, ओके। यूरिन यहाँ फॉर्मेशन हो यूरिन की, अब यूरिन यहाँ से कहाँ मूव करेगा, कलेक्टिंग डक्ट में, एंड फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट इट मूव्स इनटू द यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, ओके, एंड देन इट मूव्स आउट ऑफ द बॉडी, ओके। बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द वन नेफ्रॉन, लेकिन किडनी में बड़े सारे नेफ्रॉन्स है, तो सारे नेफ्रॉन क्या करेंगे, यूरिन फॉर्मेशन करेंगे और फाइनली उसको कहाँ भेज देंगे, यूरेटर में, एंड फ्रॉम द यूरेटर द फिल्ट्रेट मूव्स इनटू द urinary bladder, okay. So again I am repeating, you can see in the picture कि dirty blood जो है, dirty blood from the renal artery comes into the glomerulus, glomerulus में उसकी filtration होगी, only blood remains here, जो blood है वो यहाँ रहेगा, बाकी जो भी यूजफुल और हार्मफुल चीजें हैं वो नेफ्रॉन में ट्यूब्यूल में आती जाएंगी, एंड फ्रॉम द ट्यूब्यूल द यूजफुल थिंग्स अगेन रीएब्सॉर्ब, जो ब्लड कैपिलरी ऊपर प्रेजेंट है वो उसको रीएब्सॉर्ब कर लेंगे, और जो हार्मफुल होंगी they form the urine and then they passes into the collecting duct, and from the collecting duct it goes to the ureter and then urinary bladder, okay. So this is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is the structure of nephron, structure of nephron and the functioning of nephron. And one more thing, अब देखो renal artery ने blood लाया, ओके, ये ब्लड यहाँ से आएगा, एंड फ्रॉम द रिनल वेन, ये जो आपकी है दिस इज द रिनल वेन, ठीक है, यही आपकी ये रिनल आर्टरी है और ये आपकी रिनल वेन है, जो आपकी क्या करेगी, प्योर ब्लड लेगी, दिस प्योर क्लीन ब्लड अगेन गोज टू द बॉडी, ओके। सो क्लीन ब्लड आपका वापस बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाएगा। इस तरह से बॉडी में जो वेस्ट है दैट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड इट कम्स आउट, it moves out of the body in the form of urine.
Now just look here, all glucose, all amino acid, most salt and most water reabsorb in blood here. यहाँ से जाते जाते टाइम, यहाँ से निकलते टाइम जो भी चीजें यूजफुल होंगी, ग्लूकोज यूजफुल है, अमाइनो एसिड्स है, सॉल्ट्स हैं, तो वो कहाँ रीअब्सॉर्ब होकर ब्लड कैपिलरीज में चल जाएंगे. ट्यूब्यूल के अंदर सिर्फ क्या जाएगा, यूजफुल सॉरी हार्मफुल थिंग्स. ओके, नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर, जो भी मैंने आपको पढ़ाया वही लिखा हुआ है. द डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट लाइक यूरिया ब्रॉड बाय रेनल आर्टरी लाएगी, एंटर करेगा ग्लोमेरुलस में. द ग्लोमेरुलस फिल्टर्स दिस ब्लड. ओके, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द सबस्टांस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट, वाटर, यूरिया जो भी है प्रेजेंट इन द ब्लड एंटर्स इनटू वोमेन्स कैप्सूल में एंटर करेगा एंड देन एंटर द ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन. ओके, सो when the filtrate containing useful substances as well as the waste substances passes through the tubule, वो जो U shape structure जो pass कर रहा होगा U shape structure से, when it is passing from this U shape structure, then the useful substances, glucose, amino acids are reabsorbed into the blood through the capillaries surrounding the tubule and only the waste substances जो होंगे, some unwanted salt and excess water remain behind in the tubule, जो आपका क्या बनाएगा, urine. Okay, the liquid left behind in the tubule of the nephron is urine and nephron carry this urine into the collecting duct of the kidney. ठीक है, nephron से जो distal convoluted tubule से waste कहाँ जाएगा, into the collecting duct of the kidney from where it is carried to ureter, and from the ureter urine passes into the urinary bladder and urine is stored in the bladder for some time and then ultimately it move out of the body. Okay, so this is clear. Yes, ma'am. So Yes, ma'am. this is all about the human excretory system. Okay, human excretory system and the structure and function of nephron. So this is a very important question. You all have to read the structure of nephron, the function of nephron, and if there is a problem then we will discuss again. Now we are left with last question, that is the hemodialysis. So इसी के अंदर topic है, that is the dialysis or the hemodialysis. Okay, picture is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब उसने क्या है कि समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स अ पर्सन्स किडनी में स्टॉप वर्किंग. ठीक है, किडनी जो है वो काम करना बंद कर देती है. क्यों करती है, किडनी में इन्फेक्शन हो जाती है, एन इंजरी टू द किडनी, या फिर उसमें ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं करता, सो उसकी वजह से डेट कैन डैमेज द किडनी, सो जिसकी वजह से किडनी स्टॉप कर देती है काम करना. सो कंप्लीट फेलियर ऑफ द किडनी, अगर कंप्लीटली उसका फेलियर हो जाता है, जो यूरिया है, यूरिया जो बाकी वेस्ट हैं, यूरिया एंड अदर वेस्टेज starts to build up in the body, वो बॉडी में accumulate होने शुरू हो जाते हैं and definitely they will create poison in the body. So उसने क्या है कि उसके लिए फिर क्या करते हैं, उसने क्या है, this will cause the death of the patient. अगर उसको आप immediate कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते हो तो this will cause the death of the patient. तो उसने क्या है कि एक हमारे पास प्रोसेस का क्या है कि हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, बट किडनी ट्रांसप्लांट इज अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस भी है और बड़ा टाइम भी लगता है. ओके, सो उसने कहा द बेस्ट सोल्यूशन तो ये किडनी ट्रांसप्लांट, बट इफ किडनी ट्रांसप्लांट इज नॉट पॉसिबल किसी भी रीजन की वजह से, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर्सन के अंदर हम प्रोसेस करेंगे, दैट इज द डायलिसिस और यू कैन से द हेमोडायलिसिस. यू कैन सी इन द पिक्चर artificial kidneys and apparatus used for removing accumulated nitrogenous waste product like urea from the body of a patient through the technique of dialysis. ठीक है, डायलिसिस में क्या है, एक अपरेटस होता है, एक अपरेटस जिसको आप आर्टिफिशियल किडनी बोलते हो, और वो सेम वे जैसे हम बॉडी से यूरिया रिमूव करते हैं वो भी हमारी बॉडी से यूरिया जो है, जो भी वेस्ट है वो रिमूव करता है. ओके, नाउ दिस नीड ऑफ आर्टिफिशियल किडनी की, वो तो आपको पता है क्या होता है, क्योंकि किडनी वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो वेस्ट रिमूव करते हैं. ओके, सो एज दी उसने क्या, kidneys are vital organ for our survival as these filter toxic waste substances from the body, but sometimes the damage to kidney इन्फेक्शन की वजह से, इंजरी की वजह से, डायबिटीज की वजह से भी किडनीज फेलियर हो सकता है, ज्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है. सो दिस लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी में वेस्ट सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे. सो if in case one kidney is damaged, the other kidney is sufficient. अगर एक किडनी खराब है तो दूसरी किडनी काम कर सकती है, but if both the kidneys are damaged, an artificial kidney can be used. Okay, so now we will see the system of the who is using. Yes, so now we'll see the system of the artificial kidney. Now you can see in the picture the procedure used for kidney for cleaning the blood of a person. एक blood
पर्सन के ब्लड को क्लीन करना बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सबस्टांसेस इज कॉल्ड एज द डायलिसिस, को आप डायलिसिस बोलते हो. सो यू कैन सी इन द पिक्चर, इसमें देखो ये पर्सन है, ये रीनल आर्टरी है, ठीक है. दिस इज द रीनल आर्टरी, दिस रीनल आर्टरी इज कनेक्टेड टू ए, ये जो सिस्टम है इससे कनेक्टेड है. उसने कहा द ब्लड फ्रॉम द आर्टरी इन द पेशेंट आर्म इज मेड टू फ्लो इनटू द डायलिजर ऑफ ए डायलिसिस मशीन, ठीक है. यहाँ से जो ब्लड है वो फ्लो करेगा रीनल आर्टरी से. रीनल आर्टरी जो है डर्टी ब्लड देगी, ओके. ये जो आपकी है रीनल वेन जो प्योर ब्लड वापस लेके जाएगी. टू ब्लड वेसल्स आपको दिख रही हैं. नाउ ये जो आपका सिस्टम है, ये जो आपका अपरेटस है, दिस अपरेटस के अंदर क्या है, ये आपकी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स हैं, ओके. ये जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स है, इसमें क्या आएगा आपका ब्लड, ओके. यहाँ देख सकते हो कि ब्लड एंटर्स इनटू दिस ट्यूब्स, इन ट्यूब्स में ब्लड एंटर करेगा. ये जो आपका पूरा सिस्टम है इसके अंदर क्या होगा, डायलिजर होगा, ओके. सो इसमें क्या है कि उसने क्या आर्टिफिशियल, जस्ट लुक इनटू द पिक्चर, आर्टिफिशियल किडनी क्या है, कंटेन ए नंबर ऑफ ट्यूब्स. ये नंबर ऑफ ट्यूब्स हैं विद अ सेमी परमिएबल लाइनिंग, ठीक है. ये जो ट्यूब्स हैं इनकी लाइनिंग क्या है, सेमी परमिएबल. सस्पेंडेड इन ए टैंक फिल्ड विद, एक टैंक के अंदर है, ठीक है. देख रहे हो ना, ये जो ब्लू वाला है वो टैंक है, और टैंक के अंदर क्या है, ये ट्यूब्स हैं विद डायलिसिंग फ्लूइड. इस टैंक के अंदर क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट है. ब्लड इज टेकन आउट फ्रॉम द आर्टरी ऑफ ए पेशेंट, ओके. देन पास, ब्लड यहाँ से लेते हैं आर्टरी से, एंड देन पास इनटू दीज ट्यूब्स, ओके, पास इनटू दीज ट्यूब्स ऑफ आर्टिफिशियल किडनी. ड्यूरिंग दिस पैसेज, अब जब ब्लड यहाँ से पास करेगा, ब्लड इन कैपिलरीज में स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है. तो जो डायलिसिंग है, यू नो कि कोई भी चीज होती है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करती है. तो ब्लड कंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द वेस्टेज, और जो डायलिसर है उसमें वेस्टेज होंगे ही नहीं. तो जो भी वेस्ट ब्लड के अंदर होगा वो यहाँ से ट्यूब्स में, क्योंकि ट्यूब्स क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल, जो चीजों को मूव करने देती हैं, ओके. तो जो सिलेक्टेड चीजें होंगी, जो वेस्ट सबस्टांसेस होंगे, वो यहाँ से मूव कर कहाँ चले जाएंगे, डायलिजर में चले जाएंगे. और जो प्योर ब्लड है वो यहाँ से फिल्टर होके वापस उस पर्सन के अंदर चल जाएगा, ओके. नाउ ये देख रहे हो, दिस द डायलिसिंग फ्लूइड, जो हम नया वाला फ्लूइड एंटर कर रहे हैं, उसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है. और ये जो कौन सा वाला है, डायलिसिंग सोल्यूशन, जो हमने यूज, जिसके अंदर वेस्ट है, ठीक है. तो जो वेस्ट वाला वो हम यहाँ से रिमूव करवाएंगे, और दिस इज द जो हम न्यू वाला ऐड कर रहे हैं, न्यू वाला ऐड करते जाएंगे, ओके. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये प्रोसेस क्या है. उसने कहा है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन आर रिटेन्ड इन द ब्लड व्हाइल द स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक अमोनिया, यूरिया, जो भी वेस्ट होंगे वो वेस्ट कहाँ मूव कर जाएंगे, डायलिसिस के अंदर. ये ट्यूब्स हैं, क्योंकि ट्यूब्स क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल, ट्यूब्स की जो वॉल है वो बिल्कुल थिन है, तो वो परमिएबल है. वेस्ट सबस्टांसेस जो है वो यहाँ से मूव करके कहाँ चल जाएंगे, डायलिजर के अंदर. एंड द फ्रॉम द डायलिजर, ये इसको हम डायलिजर को यहाँ कलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से हम न्यू वाला डायलिजर ऐड करते जाएंगे, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द हेमोडायलिसिस. नाउ यू कैन सी ये सेमी परमिएबल ट्यूब्स है, ये जो ट्यूब्स हैं क्या सेमी परमिएबल. नाउ यू कैन सी ब्लड विद वेस्ट प्रोडक्ट, ये ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है, ये डायलिसेट बिल्कुल प्योर है. अब ये है ब्लड वेस्ट, और ब्लड से वेस्ट कहाँ चलेगा, डायलिजर के अंदर. उस डायलिजर को हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे, ओके. सो दिस इज क्लियर. उसने क्या है, द प्योरिफाइड ब्लड इज वार्म टू, उसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे करते हैं, फिर वापस जो है इज पंप्ड बैक इनटू द वेन ऑफ द पेशेंट, उसको वापस पंप कर देते हैं. एंड ये जो प्रोसेस है दिस टेक्स 3-4 आवर्स इसमें लग जाते हैं, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द हेमोडायलिसिस. इज दिस क्लियर टू यू? दिस इज वेरी वेरी सिंपल. Yes, ma'am. ओके. पेशेंट Yes, के ma'am. पेशेंट की बॉडी से ब्लड लेना है, उसको इन ट्यूब्स के अंदर डाल देना है, ठीक है. ये ट्यूब्स क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल, जो बिल्कुल की वॉल क्या है, थिन है. तो डायलिसिस टैंक में डालोगे तो टैंक से क्या होगा कि ब्लड के अंदर वेस्ट है, वेस्ट जो कैपिलरी, ये जो ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स में जो वेस्ट है वो कहाँ चल जाएगा, डायलिसिस में चल जाएगा. और डायलिसिस से हम इसको कलेक्ट कर लेंगे. जैसे हमारी ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है ना, ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज से वेस्ट कहाँ चल जाता है, वुमेन्स कैप्सूल में. इन द सेम वे यहाँ का कहाँ चल जाएगा, डायलिसिस के अंदर, ओके. So this is clear? Okay, anything? Yes, ma'am. Okay. Jessica, what you are asking? Very nice question. Okay, any problem, any other problem? Anything you want to ask regarding this? No, ma'am. Any question? So in the next class, now you all read this chapter thoroughly. If any problem, please tell me, and we will in the next class we'll start with the next chapter, that is the control and coordination. But just remember कि ये सबसे lengthy chapter है आपका life process.
and it is of सबसे ज़्यादा marks का है. So read this chapter thoroughly. Okay, read this chapter. Okay, any problem, anything you want to ask? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. Okay, so all of you submit your holiday homework, okay, as soon as possible. May I end the session if no question? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, Thank you, ma'am. yes, okay, Thank okay, you, ma'am. Thank Thank you, you, ma'am. ma'am. okay, Thank you, okay. ma'am.